Good morning, everybody. Today we are starting a new unit that is based on HTML. Okay, in this unit we will discuss about the hypertext markup language. This is the basic language that we use to create the web pages. Okay, now let's we start this unit. First of all, we will discuss about the basic terminology that is related to the HTML. First thing is internet. Everybody know that internet is the emerging technology because it is the important part of our life. We can get the any type of informations, any types of data with the help of the internet. Okay, that's why we can say that it is the emerging technology and has become a vital part of our life. It is the largest information base, means that we can store the informations anywhere from any location in any other computers. That's why we can say that with the help of the internet we can store the information anywhere, we can find the information from anywhere. Okay, the internet basically it is the network of network. Everybody know that the internet is the network of network, means we can say that it is the network of millions of computers. It is the network of millions of computers which are connected with each other. Means all these computers are connected with each other to share the information and resources. Basically information को share करने के लिए किसी भी टाइप के रिसोर्सेज, चाहे वो हार्डवेयर रिसोर्सेज हो चाहे वो सॉफ्टवेयर रिसोर्सेज हो, इन रिसोर्सेज को एक्सेस करने के लिए, शेयर करने के लिए हम यूज़ करते हैं इंटरनेट का. ओके, हम यूज़ करते हैं इंटरनेट का. बेसिकली द बेस्ट एग्जांपल ऑफ इंटरनेट इज़ द एटीएम फैसिलिटी. ATM facility in single bank contain the multiple ATMs in different cities, and these ATMs are connected with each other. Now every computer that are connected in the internet may be a server or may be a client. Everybody know that client always create the request, and server always fulfill the request to the clients. Basically server and clients, yeah, you can say that every computers on the internet communicate via the networking protocols. For example, HTTP, hypertext transfer protocol. Basically there are some important networking protocols. इन प्रोटोकॉल्स की हेल्प से ही हम लोगों के जो कंप्यूटर्स हैं जो नेटवर्क से कनेक्टेड होते हैं वो एक दूसरे को अपना डेटा ट्रांसफर कर सकते हैं, डेटा को रिसीव कर सकते हैं. ओके, basically client always send request to the server, and the server respond immediately with the required data. Basically जो हमारा सर्वर होता है it is the main computer, that has the huge storage capacity. बेटा जो भी हमारा सर्वर होता है उसकी जो स्टोरेज एंड प्रोसेसिंग कैपेसिटी होती है दैट वाज वेरी लार्ज. ओके, नाउ मैंने आपको बताया था कि जो हमारा सर्वर होता है बेसिकली हमारा एक बिग कंप्यूटर होता है जिसकी प्रोसेसिंग स्पीड और डेटा को स्टोर करने की जो कैपेसिटी होती है वो बाकी के रिमेनिंग कंप्यूटर्स के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा हाई होती है. दैट्स वाई वी कैन से दैट द सर्वर स्टोर फाइल्स एंड इंफॉर्मेशंस. जो हमारा सर्वर होगा बेसिकली हमारा डेटा को, हमारी इंफॉर्मेशन को वेबसाइट की फॉर्म में स्टोर करता है. नाउ द क्वेश्चन इज दैट व्हाट इज द वेबसाइट. Basically the website consists of millions of pages. बेसिकली जो वेबसाइट होती है उसके अंदर मल्टीपल पेजेस होते हैं और पेजेस का मतलब होता है बेटा डिजिटल पेजेस. ओके, डिजिटल पेजेस मीन्स that pages that are stored in a computer and we can access these pages with the help of the internet. That's called the web pages. Okay, the website consists of millions of pages. जो हमारी वेबसाइट होती है इसके अंदर मल्टीपल पेजेस होते हैं. These pages are known as the web pages, and basically these pages we can access with the help of the internet. The best example of the website, for example YouTube. Everybody listen the songs, everybody find the related videos of the regarding any topics. Basically जो हमारे वेब पेजेस होते हैं उस वेब पेजेस में आपका टेक्स्ट भी अवेलेबल होता है, आपका ग्राफिक्स भी होता है, आपका वीडियो भी एंड ऑडियो भी. एंड द मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट, we can link
we can link multiple pages with each other. We can link the multiple pages with each other, and this link is known as the hyperlink. This link is known as the hyperlink. Basically, hyperlinks are the link that we use to create the linking between the multiple pages. To create the linking between the multiple pages. These web pages can be accessed by the different user. ये जो वेब पेजेस होते हैं, जो हम लोग हमारी वेबसाइट्स को क्रिएट करने में यूज करते हैं, इन पेजेस को डिफरेंट यूजर ऑल ओवर द वर्ल्ड कैन एक्सेस, बट विद द हेल्प ऑफ द इंटरनेट कनेक्शंस. With the help of the internet connection. That's why we can say that the internet is very important for our life to find out any type of information regarding any topics. Basically, these web pages are created with the help of HTML. जो ये हमारे वेब पेजेस होते हैं, इनको हम क्रिएट करने के लिए HTML का यूज करते हैं. नाउ द HTML is the hypertext markup language. Hypertext markup language. Okay. HTML is the most widely used language to design the web contents for the internet. Basically जो web contents हैं जिनको आप इंटरनेट की हेल्प से एक्सेस करते हैं, उन web contents को क्रिएट करने के लिए हम लोग HTML का यूज करते हैं. The full form of the HTML is the hypertext markup language. Hypertext markup language. It is the complete code package. Okay, it is the complete code package that allow the user to create the web pages. बेसिकली वेब पेजेस को क्रिएट करने के लिए हम लोग इसको यूज करते हैं. दैट कंटेन बोथ टेक्स्ट, ग्राफिक्स, ऑडियो, वीडियो. ओके, ऑल द थिंग्स आर अवेलेबल इन द वेब पेजेस. बेसिकली जो हमारी ये लैंग्वेज है, मार्कअप लैंग्वेज है, दैट वी यूज टू डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर एंड बिहेवियर ऑफ द वेब डॉक्यूमेंट. मीन्स आपका जो वेब डॉक्यूमेंट होगा उसका स्ट्रक्चर क्या होगा, उसका लेआउट क्या होगा, और जो आप लोगों ने वेब पेजेस क्रिएट किए हैं वो किस तरीके से डिस्प्ले होंगे. That is defined by the HTML. Okay, all the web browsers means that Internet Explorer, Google Chrome, Mozilla Firefox, these are the multiple browsers. These are designed to understand and interpret this language. Means जितने भी most of the web browsers आप लोग यूज करते हैं किसी वेबसाइट को एक्सेस करने के लिए, किसी भी वेबसाइट को एक्सेस करने के लिए, वो इस तरीके से डिज़ाइन किए जाते हैं, वो इजीली HTML कोड को अंडरस्टैंड करते हैं, और जो उसका मीनिंग होता है, जो भी डेटा उसको डिस्प्ले करना होता है, वो आपको इजीली डिस्प्ले कर सकते हैं. नाउ द फर्स्ट थिंग, हाइपर टेक्स्ट. बेसिकली इट इज़ द सिंपल टेक्स्ट. इट इज़ एन सिंपल ऑर्डिनरी piece of text that has a special facility. Yeah, you can say that that has the special features of linking to other documents, और web pages. Okay, बेटा हाइपरटेक्स्ट हमारा एक सिंपल पीस ऑफ टेक्स्ट होता है, लेकिन एक स्पेशल फैसिलिटी होती है उसमें. उस टेक्स्ट की हेल्प से हम हमारी वेबसाइट के जो अदर पेजेस होते हैं, उन अदर पेजेस को एक दूसरे से लिंक कर सकते हैं. दीज आर द हाइपरटेक्स्ट. whenever you will click on that hypertext, जब भी आप लोग अपने इस hypertext पे क्लिक करेंगे, it opens a new web page. जब भी आप लोग अपने hypertext पे क्लिक करेंगे तो आप लोगों को अपना जो भी वेब पेज आपने लिंक किया था वो वेब पेज आपके सामने ओपन होगा. नाउ द मार्कअप लैंग्वेज. बेटा मार्कअप का मतलब होता है सिंपली दिस लैंग्वेज यूज द स्पेशल टाइप्स ऑफ सिंबल्स दैट कॉल्स द टैग्स. बेसिकली जो हमारी मार्कअप लैंग्वेज है HTML, ये अपने प्री डिफाइन या प्री डिज़ाइन कुछ पर्टिकुलर सिंबल यूज़ करती है जिसको हम टैग के नाम से आइडेंटिफाई करते हैं. और ये जो हमारे टैग्स हैं, ये बेसिकली हमारे टेक्स्ट डॉक्यूमेंट को, ये जो हमारे टेक्स्ट डॉक्यूमेंट है उनको इंस्ट्रक्ट करता है कि जो हमारा ब्राउज़र है वो किस तरीके से इस टेक्स्ट को डिस्प्ले करेगा. इट इज़ ए लैंग्वेज दैट यूज स्पेशल सिंबल कॉल्ड टैग्स टू मार्कअप ए टेक्स्ट डॉक्यूमेंट, जो बेसिकली हमारे टेक्स्ट डॉक्यूमेंट को ब्राउज़र की हेल्प से किस तरह से डिस्प्ले होगा ये आइडेंटिफाई करेगा. मार्कअप लैंग्वेज बेसिकली क्लासीफाइंग द पार्ट्स ऑफ ए डॉक्यूमेंट. जो हमारा डॉक्यूमेंट है उसको क्लासीफाई करता है, बट अकॉर्डिंग टू दियर फंक्शंस. उन पर्टिकुलर पार्ट्स के जो स्पेशल फंक्शन हैं उसकी हेल्प से ही हमारे डॉक्यूमेंट को क्लासीफाई करेगा मार्कअप लैंग्वेज. बेसिकली ये आइडेंटिफाई करेगा जो डॉक्यूमेंट है उसका कौन सा पार्ट टाइटल होगा, कौन सा पार्ट हेडिंग में आएगा और कौन सा पार्ट सब हेडिंग में आएगा. इस तरह के क्लासिफिकेशन हमारे डॉक्यूमेंट का सेट किया जाता है विद द हेल्प ऑफ द मार्कअप लैंग्वेज. दैट्स व्हाई वी कैन से दैट
The markup language basically focus on the display of the text. Display of the text. Okay. Now, brief history of HTML. Basically HTML hypertext markup language, जो इसकी जर्नी स्टार्ट हुई थी बेटा वो 1980 में स्टार्ट हुई थी और इसका जो फर्स्ट नाम था डेट वाज द जर्नल मार्कअप लैंग्वेज, डेट वाज द जर्नल मार्कअप लैंग्वेज। लेकिन 1986 के अंदर इसका एक मॉडिफाई और स्टैंडर्डाइज वर्जन आया जिसका नाम था SGML, स्टैंडर्ड जर्नल मार्कअप लैंग्वेज, स्टैंडर्ड जर्नल मार्कअप लैंग्वेज 1986 में। लेकिन टिम बर्नर एंड ली एंड उसकी जो टीम थी उस टीम ने इस लैंग्वेज को फिर से रीडिजाइन किया और इसको नाम दिया था HTML, हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, और वो था 1989 के अंदर। ओके, लेकिन जो इसका स्टैंडर्ड वर्जन आया था डेट वाज द HTML 2.0, ये आया था बेटा 1995 के अंदर, ये आया था 1995 के अंदर। उसके 2 साल के बाद एक नया वर्जन आया डेट वाज द HTML 3.0 और उसके भी नेक्स्ट 2 ईयर्स के बाद नया वर्जन लॉन्च हुआ HTML 4.0, HTML 4.0। बेसिकली HTML इज द हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, लेकिन हर बार उसमें अंदर कुछ नए एक्स्ट्रा फीचर्स ऐड होते गए और उनको एक वर्जन का नाम दिया गया, फॉर एग्जांपल 2.0, 3.0 एंड 4.0। एंड द नाउ द लेटेस्ट इट इज द HTML5, इट इज द HTML5। बेसिकली जो हमारी दो मेजर ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो इसके डेवलपमेंट में इन्वॉल्व थी। फर्स्ट वन वाज द वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्डियम, World Wide Web Consortium, and second one is the Web Hypertext Application Technology, Web Hypertext Application Technology Working Group. Okay, what WG and W3C. Okay, these are the two main groups that are involved, that were involved in developing HTML5. Now, HTML5. It is the latest version of HTML. It is a markup language using which you can create a web page. You can create the web page. Now, adding audio and video clips in the web page is very easy. बेसिकली जैसे हम लोग हमारी इमेजेस को ऐड कर सकते थे, अब HTML5 में हम लोग हमारे ऑडियो और वीडियो क्लिप्स को भी इजीली ऐड कर सकते हैं। बेसिकली जो अर्लियर वर्जन थे इसके जैसे 2.0 एंड 3.0 में वीडियो और ऑडियो को ऐड करना बहुत ज़्यादा इजी नहीं था, उसके लिए हमें कुछ एक्सटर्नल सॉफ्टवेयर और कुछ प्लगइन्स की नीडेड होती थी, जैसे फ्लैश प्लेयर, जैसे फ्लैश प्लेयर। तो फ्लैश प्लेयर के बिना हमारे जो वीडियोस पार्ट थे या वीडियो क्लिप्स थी वो हम लोग इसमें इजीली ऐड नहीं कर सकते थे। लेकिन विदाउट नीडेड ऑफ एक्स्ट्रा प्लगइन्स और फ्लैश प्लेयर्स वी कैन ऐड द ऑडियो फाइल्स एंड वीडियो क्लिप्स इनटू द वेब पेजेस। Okay, basically the canvas feature, everybody know that the canvas features we used for drawing the images, we use for drawing the images. If you want to draw the images we can use canvas features, और इस canvas feature की हेल्प से, इस canvas features की हेल्प से आप लोग किसी भी वेब पेजेस पे डायरेक्टली किसी इमेज को क्रिएट कर सकते हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट जो टूल हम बेसिकली यूज़ करते हैं बेटा, बेसिकली HTML डॉक्यूमेंट को क्रिएट करने के लिए या उस पर वर्क करने के लिए हमें दो इम्पॉर्टेंट टूल की नीडेड होती है। फर्स्ट वन इज़ द HTML एडिटर। HTML एडिटर मीन्स एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहाँ पर आप अपने कोड को लिख सकें और उस कोड को सेव कर सकें। ओके, एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहाँ पर आप अपने कोड को क्रिएट कर सकें और क्रिएट करने के बाद उसको आप सेव कर सकें। और जो सेकंड इंपॉर्टेंट टूल होगा डेट इज़ द वेब ब्राउजर्स, मीन्स उन पेजेस को जो आपने क्रिएट किए हैं, सेव किए हैं, उन पेजेस को डिस्प्ले करने के लिए आपको जो ब्राउजर्स की नीडेड होगी। ओके, बेसिकली वी यूज़ द ब्राउजर्स फॉर व्यूइंग द डॉक्यूमेंट्स। मैंने अभी आपको नाम लिया इंटरनेट एक्सप्लोरर, मोजिला फायरफॉक्स, गूगल क्रोम, ओपेरा मिनी, these are the web browsers. Okay, now first of all we will discuss about the HTML editor. बेटा बेसिकली दो टाइप्स के एडिटर हैं यहाँ पे। फर्स्ट वन WYSI, इसका जो फुल फॉर्म होता है दैट इज द व्हाट यू सी। W मीन्स व्हाट, Y का मतलब यू एंड S का मतलब सी। व्हाट यू सी इज व्हाट यू गेट एडिटर। और सेकंड जो एडिटर है दैट इज द टेक्स्ट एडिटर। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस अबाउट द what you see is what you get editor. Basically the full form of WYSIWYZ, what you see is what you get. This type of web editor allow a developer to see
व्हाट द एंड रिजल्ट मीन्स दैट जैसे ही आप अपने डॉक्यूमेंट को क्रिएट करेंगे आप उसका इमीडिएटली रिजल्ट देख सकते हैं कि वो हमारा जो वेब पेज हमने क्रिएट किया है उसका लुक क्या होगा, उसका डिस्प्ले कैसे होगा, ओके उसका डिस्प्ले कैसे होगा। जैसे आपने अपना डॉक्यूमेंट क्रिएट किया आप लोग उसका डिस्प्ले चेक कर सकते हैं। दीज एडिटर प्रोवाइड द वेरियस टूल्स एंड ग्राफिकल इंटरफेस। बेसिकली यहाँ पर कुछ आइकन्स होते हैं, कुछ टूल्स अवेलेबल्स होते हैं। अगर आप लोगों को HTML कमांड्स की नॉलेज नहीं है तो आप उन इंटरफेस की हेल्प से बेसिकली अपने किसी भी कंटेंट को उन वेब पेजेस में ऐड कर सकते हैं। ओके, इफ़ यू डोंट हैव any knowledge of HTML commands, for example how we can insert the images, tablets, etc., then we can place on the interface। तो इन सब ऑप्शंस के लिए वहाँ पर बेटा इंटरफेस और आइकन अवेलेबल होते हैं। आप लोग अपनी जो इमेजेस हैं, टेबल्स हैं, उन इंटरफेसेस पे क्लिक कीजिएगा, ऐड कीजिएगा, वो ऑटोमेटिकली आपके वेब पेजेस पे ऐड हो जाएंगी। और इसका जो एग्जांपल है वो है अडोब ड्रीम व्यूअर्स, अमाया, गूगल वेब डिज़ाइनर, गूगल वेब डिज़ाइनर्स। ओके, दीज आर द एग्जांपल ऑफ what you see is what you get editors, Adobe Dreamweaver, Amaya, and Google Web Designer. Next, text editor. Basically it is the notepad, it is the notepad of WordPad in which you can write your commands, but the main important thing is that यहाँ पर आपको अपने HTML commands की complete या proper knowledge होना बहुत ज़रूरी है। ये एक सिंपल नोटपैड है, टेक्स्ट डॉक्यूमेंट है आप लोगों का, और उस टेक्स्ट डॉक्यूमेंट में आप लोग अपने जो कमांड्स हैं वो कमांड्स लिखेंगे और कमांड लिखने के बाद आप उसको सेव करेंगे। ओके, तो यहाँ पर जो मेन इंपॉर्टेंट थिंग्स है कि नोटपैड और वर्डपैड में अगर आप लोगों को वर्क करना है, नोटपैड और वर्डपैड में अगर आप लोगों को वर्क करना है तो आपको कंप्लीट नॉलेज आपके HTML कमांड या HTML टैग की होनी ज़रूरी है। ओके, नाउ ब्राउज़र। द ब्राउज़र मैंने आपको बताया था बेसिकली टू व्यू द HTML डॉक्यूमेंट्स वी नीड ए वेब ब्राउज़र्स, we need a web browsers. The first one is the Google Chrome, second one is the Internet Explorer, third one is the Microsoft Edge, fourth one Apple Safari, Mozilla Firefox, and Opera. These are the web pages. Okay, now let's we see how we can create a HTML documents. Okay, तो बेटा सबसे पहले हम लोग एक डॉक्यूमेंट क्रिएट करेंगे, एक बेसिक और सिंपल सा डॉक्यूमेंट जो हम लोग क्रिएट करेंगे, और उसको क्रिएट करने के लिए हम लोग यूज कर रहे हैं बेटा नोटपैड को। ओके, लेट्स सी हाउ वी कैन क्रिएट इट। फर्स्ट ऑफ ऑल क्लिक ऑन द स्टार्ट बटन। जैसे आप स्टार्ट बटन पे क्लिक करेंगे यू विल फाइंड द विंडोज एसेसरीज। आप अपने माउस की हेल्प से इसको डाउन लाइएगा और फाइंड आउट द विंडोज एसेसरीज। this one, Windows accessory, and click on that and you can find out the notepad. Okay, now the next, right click anywhere, click on the new option and there is a text document. It is also a notepad. आपने इस पर क्लिक किया, आपके सामने आपका जो नेक्स्ट न्यू टेक्स्ट डॉक्यूमेंट ओपन हो चुका है। यू कैन सी दैट इट इज़ ऑल्सो ए नोटपैड। मैं यहाँ पर अपना जो कंटेंट मैं लिखने जा रहा हूँ उसका फ़ॉन्ट साइज बेटा मैं इंक्रीज कर रहा हूँ। फॉर्मेट में गया, यहाँ से फ़ॉन्ट ऑप्शन पे गया और मैं यहाँ पे अपना जो साइज़ है टेक्स्ट के लिए वो इंक्रीज कर रहा हूँ। ओके, नाउ आई एम राइटिंग दिस सिंपल कोड। बेटा एक चीज़ याद रखना हमेशा कि HTML डॉक्यूमेंट को क्रिएट करने के लिए सबसे पहले आपको HTML टैग का ही यूज़ करना पड़ेगा। ओके, मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल क्रिएट कर रहा हूँ। सबसे पहले मैंने लिखा HTML, ये एंगुलर ब्रैकेट से बेटा HTML के लेफ्ट साइड और राइट साइड में जो मैंने सिंबल यूज़ किए दीज आर द एंगुलर ब्रैकेट्स। HTML राइट किया, उसके बाद मैंने लिखा हेड, ओके, हेड के बाद मैंने डिसाइड किया टाइटल, टाइटल दिया मैंने माय फर्स्ट प्रोग्राम। दिस इज द टाइटल ऑफ माय डॉक्यूमेंट। ओके, नाउ आई एम क्लोजिंग। बेटा एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, जो भी टैग आप यहाँ पर ओपन करेंगे वो टैग आपको क्लोज करने होंगे। उसके लिए आपको बैकवर्ड स्लैश यूज़ करना होगा।
sorry, not backward, you will use the forward, sorry, you will use the backward slash. Now title. ओके, नाउ उसके बाद मैं हेड ऑप्शंस को यूज क्लोज करूँगा, HEAD। मैंने आपको बताया था कि जो भी आप टैग ओपन करेंगे वो मस्ट बी क्लोज करना। उसके बाद हम यहाँ पर हमारा बॉडी पोर्शन BODY मीन्स आप जो भी इंफॉर्मेशन डिस्प्ले करना चाहते हैं वो आएगा आपका बॉडी पार्ट में। ओके, नाउ दिस इज माय फर्स्ट HTML program. Okay, now I am closing my body part, BODY. Now I am closing finally HTML tag, HTML. Okay, in next video we will discuss about each and every tags. मैं आपको एक सिंपल तरीका बता रहा था कि बेटा हाउ वी कैन मेक ए डॉक्यूमेंट्स, एक वेब पेज को हम किस तरीके से क्रिएट करेंगे। नाउ क्लिक ऑन द फाइल टैब एंड देयर इज ए सेव एज ऑप्शंस। आप लोग यहाँ से अपने डॉक्यूमेंट को कोई भी नाम दे सकते हैं, जैसे मैंने दिया माय फर्स्ट प्रोग्राम। बेटा नाम देने के बाद आपको .html एक्सटेंशन जरूर यूज करना होगा। आप लोग अपने प्रोग्राम का नाम जो भी दें, आपने जो भी वेब पेज क्रिएट किया उसका नाम जो भी आपने डिसाइड किया है, उसके बाद आपको .html एक्सटेंशन यूज करना होगा। ओके, आप लोग देखेंगे ये मेरे डेस्कटॉप पे सेव है, मैंने इस पर क्लिक किया सेव बटन। ओके, नाउ आई एम क्लोजिंग इट। देखिएगा बेटा माइक्रोसॉफ्ट एज विंडो 10 का जो एक अपना स्पेशल वेब ब्राउजर है उसका नाम है माइक्रोसॉफ्ट एज, उसका आइकन बन चुका है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो देखिएगा आपके सामने एक वेब पेज इंक्लूड ओपन होगा और वहाँ पर दिखाई देगा दिस इज़ माय फर्स्ट HTML प्रोग्राम। ये वो बॉडी पार्ट था जिसमें जो मैसेज मैंने दिया था दिस इज़ माय फर्स्ट HTML प्रोग्राम, ये आपको डिस्प्ले हो रहा है। अगर आपको किसी दूसरे वेब ब्राउजर पे इसको ओपन करना है तो फॉर एग्जांपल जैसे मुझे गूगल क्रोम पे इसको ओपन करना है तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्लिक ऑन द गूगल क्रोम। यहाँ पर आप लोग सबसे पहले उस ड्राइव या लेटर को देंगे, ड्राइव लेटर का नाम देंगे जहाँ पर आपका डॉक्यूमेंट बेसिकली अवेलेबल है, जैसे मेरा C ड्राइव कॉलन। ओके, और कॉलन करने के बाद आप प्रेस करेंगे एंटर बटन तो देखेंगे आपके सामने आपके C ड्राइव के जितने भी कॉलम्स हैं या C ड्राइव के अंदर जितनी भी डायरेक्टरीज हैं वो सब आपके सामने अवेलेबल है। मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ यूज़र्स पे। यूज़र्स में मेरा जो सिस्टम का नाम है वो है लिनेवो और यहाँ पे मेरा जो फाइल है वो डेस्कटॉप पे है, तो मैंने डेस्कटॉप पे क्लिक किया और डेस्कटॉप पे देखिएगा बेटा मैं इस स्क्रॉलर की हेल्प से डाउन जाऊँगा। दिस वन माय फर्स्ट प्रोग्राम HTML, ये लिंक आपको मिलेगा, आप इस पर क्लिक कीजिएगा तो आप लोग जो वेब पेज आपने क्रिएट किया है उसको भी आप अपने किसी ब्राउज़र पर चेक कर सकते हैं। तो बेसिकली मैंने आपको बताया था कि बेटा दो इम्पॉर्टेंट टूल की नीडेड होती है हमें। पहला जो टूल है हमारा वो होता है एडिटर, मीन्स डैट जैसे व्हाट यू सी इज़ व्हाट यू गेट, और टेक्स्ट एडिटर। ओके, तो आप लोग नोटपैड की हेल्प से भी अपने HTML डॉक्यूमेंट को क्रिएट कर सकते हैं। और जो दूसरा टूल नीडेड है हमें वो है हमारा वेब ब्राउज़र। वेब ब्राउज़र की हेल्प से जो वेब पेज हम लोगों ने क्रिएट किया है उसको हम लोग डिस्प्ले कर सकते हैं या वी कैन व्यू द वेब पेजेस, वी कैन व्यू द वेब पेजेस। ओके, now in next video we will discuss how we can create a multiple features web page, कि किस तरीके से हम हमारे वेब पेजेस में टेबल इंसर्ट करेंगे, इमेज इंसर्ट करेंगे, जो हमारा वेब पेज है उसका बैकग्राउंड कलर या फ़ॉन्ट का साइज, दीज आर द मल्टीपल फीचर्स वी कैन ऐड इन आवर वेब पेज। ओके, नाउ थैंक यू एवरीबॉडी।